Yes, good morning to all. Good morning, sir. Good morning, sir. I hope that you all are well and preparing for your exam also. So first of all, let us try to go through the syllabus. So as you are aware that this is the first unit number 1, data handling using pandas and data visualization. This is the part of the syllabus, and the first part is basically using pandas 1, data handling using pandas 1. Clear? And the second part is data handling using pandas part 2, and the third and the last part is data visualization. So these are the 3 major constituents of our syllabus, and you can refer to the PPTs also. Like this is the PPT for data handling. This is part 2. This is part 1. So what is there in a part 1 basically? Part 1, you can look at the syllabus also. Part 1 is just first it tells about the basics of series and data frame. So 2 data structures which are focused in the first part is, this is the syllabus. So you can see here. So it basically emphasizes how to basically make use of series and data frames in pandas. So first of all, how to create the series and what are the different methods of creating the series. Then is how to apply the head and tail function. Then is selection, indexing, and slicing. So these are the different operations that you need to go with the series. And on series, in the final exam, you will see that all the questions based on the series are up to maximum of 2 marks. No question from series goes beyond to 3 marks and 5 marks category. Then you have data frames. So again, how to create the data frames. So then the different operations that we apply on the data frames. Then again, the head and tail, as we have head and tail in series, indexing, and Boolean indexing, joining, merging, concatenation, and also how to import and export the data between CSV file and data frames. So these are the question. One question I want to highlight based on the data visualization, which we have not focused in a big way in our earlier classes. This one. So please look at this figure closely. ये फिगर दिखाई दे रही है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, तो क्या होता है, देयर आर दिस इज बेसिकली क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सैंपल पेपर. तो ये डाटा विजुअलाइजेशन में से एक क्वेश्चन है. बेसिकली हमें चार्ट गिवन है बट वी आर नॉट गिवन विद द डाटा. तो इसमें सिर्फ एक ही चीज नहीं है, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट द डाटा. जैसे ये है क्या बेसिकली, व्हाट इज दिस इज डाटा विजुअलाइजेशन में हम इसको कैसे करेंगे? एनीवन? श्रिया, पहले कैमरा तो ऑन कर लो. सभी ने कैमरा ऑफ कर लिया है. तो ये डाटा विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है. कोई बता सकता है कैसे हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे? हाउ विल प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन? ऐसे फिगर ही गिवन होगी. यू विल बी गिवन ए फिगर एंड यू हैव टू ड्रा दिस फिगर. पहले तो ये बताओ कि इसमें हम मेथड कौन सा यूज करेंगे इस फिगर को बनाने के लिए. कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे फ्रॉम दी डाटा विजुअलाइजेशन?
PLT dot plot. Plot प्लॉट किस लिए हम करते हैं यूज? to make line graph. लाइन ड्रॉ करने के लिए। सो अब क्वेश्चन ये होता है कि बेसिकली लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें एक्स एक्सिस चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए। तो ये देखो, ये ग्राफ कहां यहाँ से शुरू हो रहा है, इस पॉइंट। तो इस पॉइंट के जो हमारे पास ये पॉइंट कैसे फॉर्मुलेट हो रहा है, एक्स की वैल्यू है -2, क्लियर, और वाई की वैल्यू है 4। तो ये हमें खुद बनाने पड़ेंगे ये पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर हमें एक्स के पॉइंट्स चाहिए तो एक्स के, अगर हमारे पास वेरिएबल एक्स है, लाइक आई मेक हियर होगी, ठीक, तो इसमें एक काम हमें खुद करना पड़ेगा, दैट इज हाउ टू मेक दी पॉइंट्स। एक्स के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज कौन सी होंगी और वाई की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कहां से होंगी, तो ये हमें पता चलेगा इस चार्ट से। तो एक्स की वैल्यू आप देख सकते हो, एक्स की वैल्यू -2 है, ठीक है। ठीक है, अगेन गो टू द फिगर, ठीक है, दिस इज द फिगर वी हैव। अब इस फिगर में मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो x की पहली वैल्यू है -2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है 4, ठीक है। -1.5 ये है, और -1.5 के कॉरस्पॉन्डिंग आप देख लो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 बन रही है। 1.0 ये है, 1.0, तो 1.0 के आप सामने देख लो कौन सी वैल्यू है, ये 1.0, ठीक है। -0.5 के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू है, सो आई थिंक दिस इज अराउंड अबाउट 0.5 है। 0 के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू है, 0 के अगेंस्ट 0 वैल्यू है, लाइक दिस। तो यू हैव टू, इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, इस क्वेश्चन में एक स्टेप हमें खुद ऐड करना पड़ेगा, और वो स्टेप है हमारे लिए, ठीक है। एक्स की वैल्यू कैसे बनानी है, एक्स की वैल्यू बन रही है x इज इक्वल टू दैट इज -2.5, ठीक है। फिर नेक्स्ट है -1.5, नेक्स्ट वैल्यू है -0.5, ठीक है। ऐसे आप सारी x की वैल्यू ले लो, ठीक है। -0.5 के बाद है 0.5, 1.0, तो ये सारी लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आ गई 0, फिर आ गई 0.5, फिर आ गई 1.5, और लास्ट है 2.5। देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग सीधी सी बात है, दी वन मेन पॉइंट इज कि y की कोरस्पॉन्डिंग उतनी वैल्यू होनी चाहिए जितनी हमने x की ले ली है। अगर मिसमैच होगा तो क्वेश्चन में एरर आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमने कैसे लेनी है, इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, जो भी फिगर आपको गिवन है, ठीक है। तो आप देख लो, -2.0 के अगेंस्ट है 2, 1.5 के अगेंस्ट है, आप यहां से इसको सीधा परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, ये राउंड अबाउट 2 बनेगी। अप्रोक्सीमेट ही करना है, अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन आती है दैट्स नॉट इशू, ठीक है। तो पहली वैल्यू है 4, दूसरी वैल्यू है 2, -1.5 के अगेंस्ट कौन सी है वैल्यू, 1.0 है, सॉरी 1.0। तो 1.0 के अगेंस्ट राउंड अबाउट ये 0.5 बनती है, 0.5 के अगेंस्ट 1.0 ये है, मैं परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये 1 ही बनती है। 0.5 के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 0.5 ही बनती है। कर लोगे ये वैल्यू सारी ड्रॉ, 1.0 के अगेंस्ट क्या थी, 1.5 थी, लाइक जो भी वैल्यूज बनती है कॉरस्पॉन्डिंग वो वैल्यू यहाँ पे आप फिल कर दो, फिर ड्रॉ हो जाएगा ये चार्ट, Yes, sir. ठीक है। तो बस इस तरह का क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर नहीं किया था, दैट्स व्हाई आई हैव, मैंने आपको स्पेसिफिक क्लू दे दिया आप लोगों को। जब भी कोई फिगर आएगी उस फिगर को आपने देखना है कि उसकी एक्स की वैल्यू कौन कौन सी है, उसकी वाई की वैल्यू कौन कौन सी है, और वो पॉइंट्स आप लोगों ने सबसे पहले एक उसकी लिस्ट बना लो, एक्स के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज की एक लिस्ट बना लो, फिर वाई की कोरस्पॉन्डिंग के लिए लिस्ट बना लो, और फिर जैसे अभी जो श्रिया ने बताया, अभी जो प्लॉट मेथड है, प्लॉट इज बेसिकली फॉर लाइन के लिए होता है, वो PLT डॉट, ठीक है। तो प्लॉट मेथड के अंदर आप हम मेंशन क्या करते हैं, एक्स की वैल्यूज, वाई की वैल्यूज, क्लियर, एंड देन द कोरस्पॉन्डिंग द अदर पैरामीटर्स लाइक कलर एंड व्हाटएवर द वैल्यू यू वांट टू गिव। इसमें कोई डाउट है, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू हैव? अभी भी किसी को डाउट है तो नॉट ए इश्यू, यू कैन आस्क, ठीक है। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर फिगर दी हो, वहां पे वैल्यूज नहीं दी होंगी, तो वो वैल्यूज एक स्टेप हमारे लिए बढ़ जाता है कि वो वैल्यू हमें खुद जनरेट करनी पड़ेगी। तो इसमें कुछ नहीं है, इसको थोड़ा
एनालिसिस करके आप देख लो कि x के कॉरस्पॉन्डिंग y की कौन सी वैल्यू आ रही है, एंड यहाँ से आप ये वैल्यू निकालो। किसी भी तरह का कोई लाइन आ सकती है, किसी भी तरह की फिगर आ सकती है जिसको आपने कन्वर्ट कर, ठीक है। दूसरा एक और है जो हमारे पास, जैसे वी आर हैविंग दिस केस बेस्ड क्वेश्चन। तो केस बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है, लाइक हियर यू आर फाइंडिंग आउट दिस इज, सबसे पहले क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको केस गिवन होगा। 95% ऑफ द टाइम्स द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा डाटा फ्रेम में से और एक क्वेश्चन आएगा माई एसक्यूएल में से। तो अभी तो हमने माई एसक्यूएल की नहीं, तो इस वाले एग्जाम में आपको एक ही क्वेश्चन आएगा डाटा एनालिसिस, ये केस बेस्ड क्वेश्चन का, दैट विल बी बेस्ड ऑन द डाटा फ्रेम, ठीक है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन को पहले समझ लो। केस बेस्ड क्वेश्चन में होता क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन में पहले हमें प्रॉब्लम गिवन होती है। जैसे ये प्रॉब्लम पढ़ना चाहिए, ये प्रॉब्लम पढ़ना क्या है? Mr. Ankit is working in an organization as data analyst. He used Python pandas and matplotlib for the same. He got a dataset of the passengers for the year 2010 to 2012 for January, March, and December. His manager wants certain information from him, but he is facing some problems. Help him by answering few questions given below. ठीक है। तो ये देखो, एक हमें प्रॉब्लम गिवन होगी कि अंकित वांट्स टू वर्क ऑन दिस डाटा and the data is given, so this data is there in the form of a data frame. So basically we have 3 columns are there, year, month and passengers, and you see here, यहाँ पे उसने fill in the blanks की फॉर्म में दे दिया। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, मिनिमम के लिए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन को उसने कन्वर्ट कर दिया किसमें, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पहला तो हमें क्लियर, या इंपोर्ट पांडास एज, पहले फिल इन दी ब्लैंक में ये पीडी आएगा, क्लियर, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, यही हम यूज करते हैं यहाँ। और ये हमें डाटा गिवन है, और पीडी डॉट यहाँ पे क्या आएगा, इसके लिए भी देखो, इसके लिए भी ऑप्शंस आर अवेलेबल टू यू। यू हैव 4 ऑप्शंस अवेलेबल विद दिस। जो सेकंड डैश को हमने फिल करना है, ये जो सेकंड डैश है यहाँ पे, तो कोई बताएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, इसमें से 1 2 3 4 में से? हाँ जी, हाँ जी, गुरलीन। सर सेकंड आएगा, डाटा फ्रेम सर, सेकंड ऑप्शन। पहला क्यों नहीं आएगा? सर पहला वाला एरर दिखाएगा क्योंकि एफ छोटा है, हाँ, इट इज नॉट इन कैपिटल। ठीक है। तो इसी तरह से थोड़े से कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द क्वेश्चन नंबर 3 इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट स्लैश मेथड फॉर द रिक्वायर्ड आउटपुट। इस तरह की आउटपुट चाहिए हमें, 5,3। सो वी हैव सो मेनी पर्सन्स हियर। 5,3 मींस, देखो एक बार फिर से एक बार ये डाटा फ्रेम देख लो अपना, और इसकी मेरे को आउटपुट 5,3 की फॉर्म में चाहिए। सो वी हैव सो मेनी पार्टिसिपेंट्स हियर। यस महक। सर यहाँ पे हम df डॉट शेप का यूज करेंगे कि हमें x एक्सिस और y एक्सिस के कितनी वैल्यूज है वो। ऑप्शंस देख लो पहले, ऑप्शंस देख लो। वैसे आंसर ही दिया हुआ है नीचे, साथ में आंसर दिया हुआ है, दैट इज df डॉट शेप। डाटा फ्रेम डॉट शेप यूज होगी इसमें, ठीक है। शेप हमें बताता क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बताता है, ठीक है जी। सो शेप, ये नंबर 2 ऑप्शन और नंबर 3 ऑप्शन में क्या डिफरेंस है? यस महक आप बताओ। सर यहाँ पे हमने इसको, जब हम ये एट्रीब्यूट लिखते हैं तो वो पैरेंथेसिस का यूज नहीं करते। हाँ, जब हमने एट्रीब्यूट वर्ड यूज कर लिया तो एट्रीब्यूट में हमारे पास ये पैरेंथेसिस यूज नहीं होती। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे बेस्ड ऑन द डाटा फ्रेम। 4 ऑप्शन भी होंगे आपके पास, सो यू नीड नॉट टू वरी, ऑप्शंस विल बी देयर इन द केस बेस्ड क्वेश्चन। तो यस महक पढ़ना आप 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़। He wants to print the details of January month along with the number of passengers. Identify the correct statement. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसके बिल्कुल साथ आंसर भी दिया होगा साथ में।
सो कोई ट्राई करना चाहेगा इसमें से दी 4 ऑप्शंस? बेसिकली इसमें क्या किया हुआ है, डाटा फ्रेम को अगर आप क्लोजली देखो तो हमारे पास एक दिसंबर मंथ है, एक जनवरी मंथ है। तो जनवरी मंथ को हम कैसे एक्सेस करेंगे? हाउ विल बी एबल टू एक्सेस विद दीज 4 स्टेटमेंट्स दैट वी हैव? कोई एक आधा ऑप्शन किसी को क्लियर हो कि जो जो विच कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द आंसर? किसी ऑप्शन को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं या श्रिया? So option 4 can yes be yes discarded. yes definitely, because ये df के साथ उसने पेरेंथेसिस यूज की है, सो पेरेंथेसिस कैन नॉट बी देयर। यस, बाकी हमारे पास 3 ऑप्शन रह गए, एक ILOC है, एक LOC है, और ये हम स्क्वायर ब्रैकेट से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यस गुरलीन? सर आंसर मेरे हिसाब से पहला होगा, पहला होगा, पहला दैट आंसर। इज, एक हमने मंथ सिलेक्ट कर लिया, एक संजय, दीज आर द 2 कॉलम्स दैट वी हैव सिलेक्टेड, और मंथ के साथ हमने कंडीशन लगा दी है, दैट इज द मंथ शुड बी इक्विवेलेंट टू जनवरी। ठीक है जी। सो एग्जैक्टली द सेकंड इज द राइट ऑप्शन। देखो स्क्वायर ब्रैकेट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन एक्सेस दी वैल्यूज। 3 मेथड है हमारे पास, LOC मेथड से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, ILO से भी कर सकते हैं, और तीसरा मेथड होता है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करके। सो ही हैज यूज्ड द स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले इस स्क्वायर ब्रैकेट से क्या एक्सेस होगा, द 2 कॉलम्स, और फिर ये थर्ड जो कॉलम है उसके ऊपर क्या हमने कंडीशन लगा दी। इसको बेस्ट एग्जांपल आप इसको रन करके भी देख सकते हो। you first create this data frame and then you can try it out all these options। ठीक है, तो इस ऑप्शन में क्या है हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट से एक्सेस किया हुआ है, क्लियर, नॉट विद द LOC एंड ILOC। तो 3 मेथड है हमारे पास हाउ टू बेसिकली स्लाइस और सिलेक्ट ए पार्ट ऑफ डाटा फ्रेम। वन मेथड इज देयर LOC, ILOC हम यूज करते हैं जहां पे हमारे पास इंटीजर वैल्यू हमारे पास हो, इंटीजर वैल्यू, वी वांट टू गिव द इंटीजर वैल्यू रादर देन द कॉलम नेम्स। और तीसरा मेथड है हमारे पास दिस स्क्वायर ब्रैकेट मेथड। So if you have doubt in any question, so you can try to execute to basically clear your doubts। एक और 5th क्वेश्चन भी है हमारे पास। So who will help me from yes, मुस्कान 12। मुस्कान बेटा पढ़ना, इसकी स्टेटमेंट पढ़ना, क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 5। Mr. Ankit wants to change the index of the data frame and the output for the same is given below. Identify the correct statement to change the index. तो इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर ये इंडेक्स वैल्यू चेंज की हुई है, तो आपने इसमें से बताना है राइट ऑप्शन, दैट इज हाउ यू कैन change the index of this data frame। So you have option 1, option 2 and option 3 and 4 in front of you। तो पहले मेथड में क्या है, इंडेक्स के साथ ये यूज की हुई है, कौन सी हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट। सो आल्सो लुक एट द ऑप्शन दैट यू कैन इजीली बेसिकली जिनको हम नेगेट कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट के अंदर इंडेक्स इज एट्रीब्यूट, और इंडेक्स के साथ क्या यूज किया हुआ है, ये पेरेंथेसिस यूज की। नाउ द कंपटीशन इज आई थिंक इज बिटवीन द ऑप्शन नंबर 2 and 3। यस गुरलीन? सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, ठीक है, क्योंकि ये देखो ऑप्शन 2 के अंदर ये इक्वल टू नहीं डाला हुआ और ऑप्शन 3 के अंदर ये इक्वल टू डाला हुआ है। ऐसे छोटे छोटे डिफरेंसेस होंगे एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर। सो दिस इज द ऑप्शन 3 वेयर द यहाँ पे ऑप्शन 1 में ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी है, ऑप्शन 4 में ये पेरेंथेसिस डाल दी हैं, और इन 2 मेथड्स में ये इक्वल टू नहीं डाला हुआ सेकंड स्टेट। तो इस तरह के क्वेश्चन है
सो दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, जैसे ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन का मैं एक और क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूं, यहाँ पे तो कुछ और क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको डाटा विजुअलाइजेशन में भी आ सकता है। समझ आ गई कि इस तरह का आपको चार्ट, इस तरह की आपको फिगर दे दी है, और इस तरह की फिगर से आपने क्या बनाना है, डायग्राम क्रिएट करनी है यूजिंग यूजिंग दी डाटा विजुअलाइजेशन को। यस महक बताओ, अगर ये फिगर गिवन है, आप इसका कैसे चार्ट कैसे बनाओगे? सर बार ग्राफ यूज करके जो मेथड होता है, ये इसमें मेथड कौन सा यूज होगा? कौन से मेथड से आप बनाओगे ये चार्ट? यस मुस्कान। सर बार से ही बनाएंगे। यस Clear बार dot है, bar. और बार की वैल्यू आप लोगों को गिवन है, दिस इज 4 एंड दिस इज, जहां जहां ये अप्रोक्सीमेट हो रहा है दैट इज यू कैन अप्रोक्सीमेट दिस आल्सो। बट ये क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ इंटरप्रेट कर रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें वैल्यूज देखो थोड़ी थोड़ी फ्रैक्शंस में आ रही है, 4 पॉइंट समथिंग आएगी, इसकी वैल्यू इसकी 5 होगी ऑलमोस्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो डाटा विजुअलाइजेशन में आ सकता है, बट दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दी केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन है, क्वेश्चन गिवन है, और नीचे ये आपको, ठीक है, ऑप्शंस इसके दिए हुए हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे केस बेस्ड के अंदर, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, मिस्टर शर्मा इज वर्किंग इन ए गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री एंड ही इज कंपेयरिंग द गिवन चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रेटिंग ऑफ द वेरियस गेम्स अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर। तो ये कंपैरिजन किया हुआ है, और नीचे इसके अंदर बेस्ड ऑन दिस चार्ट देयर आर फ्यू क्वेश्चंस। जैसे ये इंपोर्ट है, तो इंपोर्ट क्या करोगे आप लोग? सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट आएगा, ये भी नहीं, 1 भी नहीं है, 1 और 2 भी नहीं है, ठीक है। 3 विल बी दी राइट आंसर, ठीक है। मैटप्लॉटलिब इज पैकेज, ये हमारा क्या है, दिस इज द पैकेज एंड दिस इज द मॉड्यूल, और एज उसको ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए अगर हमें चार्ट अभी हमने डिस्कस किया, बार चार्ट यूज होगा, ठीक है। चूज दी करेक्ट ऑप्शंस फॉर स्टेटमेंट नंबर 3। स्टेटमेंट नंबर 3 देख लो, इसका प्रोग्राम उसने पहले बनाया हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट 3 देखोगे क्या आएगा इसमें, देखो इस as 2 students are ready, yes other than these 2, yes हर कमल। सर बाई लेवल आएगा सर। ठीक है, वेरी गुड, सिंपल सी बात है। वाई लेबल क्या है? वाई लेबल इज, ये रेटिंग हमने डिस्प्ले करवाना है, और रेटिंग किस पे है? ये वाई एक्सिस पे है रेटिंग लिखा हुआ। तो हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, PLT डॉट वाई लेबल, और वाई लेबल में हम ये मेंशन कर देंगे रेटिंग्स, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 4 क्या है? स्टेटमेंट नंबर 4 में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, बट ये क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा क्या रिक्वायर्ड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो अब बताओ इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट यूज होगी? चूज द राइट फंक्शन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। डिस्प्ले है, प्रिंट है, बार है, शो है। सो यस प्रियंका। शो, फोर्थ वन। हाँ, शो हम यूज करते हैं टू डिस्प्ले दी कंटेंट, ना तो डिस्प्ले यूज करते हैं, ना प्रिंट यूज करते हैं, ना बार यूज करते हैं। सो यू कैन आल्सो नेगेट द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। And the final question we will discuss, this is the last question. हाँ गुरलीन पढ़ना ही। In case Mr. Sharma wants to exchange the above plot to any other shape, which statement should he choose? He change. हाँ तो First option is 1 2 3 स्टेटमेंट 1 2 3 4 में से कौन सी स्टेटमेंट को चेंज करना पड़ेगा? एक स्टेटमेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। क्वेश्चन समझ आया या नहीं? पहले क्वेश्चन दिखाना फिर से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर बाद में ढूंढना पहले। देखो उसको, उसकी
ही वांट्स टू चेंज द प्लॉट, बार चार्ट से वो कोई और कोई चार्ट बनाना चाहता है, ठीक है, कोई हाँ और जी शेप सर। बनाना चाहता है, तो कौन सी अब स्टेटमेंट सर चेंज होगी? दिखाना। सर आएगा स्टेटमेंट 2 चेंज हो जाएगी सर। हाँ स्टेटमेंट 2, क्योंकि स्टेटमेंट 2 के अंदर हमने क्या यूज किया था, बार नहीं बार यूज किया था, यस बार मेथड भी है यूज। ओके जी, सो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा कोई आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, यू वांट टू रेज एनी पर्टिकुलर डाउट, ठीक है। बाकी रिसोर्स जो है दैट इज द रिसोर्स शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन। एक पीपीटीज है और एक हमारे पास एनसीईआरटी वाली बुक है। रिसोर्स में हमने यूज किया था डाटा हैंडलिंग 1 के लिए पीपीटी यूज की थी, डाटा हैंडलिंग 2 के लिए भी हमने पीपीटी यूज की थी, और डाटा विजुअलाइजेशन के लिए भी। These are the resource. किसी क्वेश्चन में किसी टॉपिक में आप लोगों को डाउट है, सो वी कैन रिवाइज दैट पर्टिकुलर टॉपिक, अदरवाइज हम वो सीरीज से शुरू हो जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रिवाइज ईच एंड एवरी टॉपिक। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, ठीक है, मैं आपको फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि सीरीज वाले क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम 2 मार्क्स तक जा सकते हैं। डाटा फ्रेम के क्वेश्चन जो है, डाटा फ्रेम की इंपॉर्टेंस जो है दैट इज देयर इन एक केस बेस्ड क्वेश्चन मिनिमम आ जाएगा फ्रॉम डाटा फ्रेम, और 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में भी देयर विल बी क्वेश्चन फ्रॉम डाटा फ्रेम। सो इसकी एग्जैक्ट बाइफिकेशन है हमारे पास अवेलेबल, दैट वी विल डिस्कस कि किस नंबर पे कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। सो दैट वी विल डिस्कस जब हम थोड़ा सा सिलेबस और पढ़ लेंगे, ठीक है। जो अभी तक हमारे एग्जाम की बाइफिकेशन है, जो उसकी मार्क्स कंपोजिशन है, कोई बता सकता है उसके बारे में कि किस तरह की कंपोजिशन होगी हमारे जो कल वाला एग्जाम? सो जल्दी जल्दी मैं जो इंपॉर्टेंट चीज है मैंने अपनी साइड से जो बता सकता था, आई एम कवरिंग दैट। सो आई एम अगेन रिवाइजिंग एमसीक्यू में से देयर विल बी 23 क्वेश्चंस, ठीक है। सो ऑफ 1 मार्क्स ईच, दिस इज मार्क्स, दिस इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। फिर 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, वैसे ही आप लोगों ने एक पेपर के ऊपर इसको सॉल्व करके फिर इसकी 1 या 2 फाइल जो है वो अपलोड करनी है। वो फाइल मोस्टली तो एक ही पेज से हो जाएंगी, अगर 2 पेज यूज होते हैं तो 2 फाइल बनती है तो 2 फाइल बना लो, नहीं तो एक ही फाइल बना के इसको अपलोड करो, ठीक है। 2 पेज को मर्ज करके एक पीडीएफ बना लो और उस पीडीएफ को आप यहाँ पे अपलोड कर देना। सिर्फ 1 मार्क्स के अलावा जितने भी लिंक हैं, 3 लिंक और हैं, वो सभी में आप लोगों ने फाइल्स अपलोड करनी है। सो ये पहला हो गया हमारे पास 23 मार्क्स, 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, फिर हमारे पास 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस दैट विल बी ऑफ 12 मार्क्स, और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस, सो दिस विल बी ऑफ 15। ये सारा फाइनल के अकॉर्डिंग पैटर्न है, इसमें से ऐसा ही पैटर्न जो है वो फाइनल में चलेगा। So this will be your 70 marks, ठीक है। जो आपका फाइनल एग्जाम है उसके अंदर थोड़ी सी जो है मींस 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस के अंदर इंटरनल चॉइस है, 3 मार्क्स के 3 मार्क्स में भी एक आधे क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, और एक आधी इंटरनल चॉइस जो है दैट इज देयर इन 5 मार्क्स। बट ड्यू टू लेस सिलेबस दिस टाइम आई हैव नॉट गिवन एनी चॉइस, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ही पूरे पूरे बन रहे हैं। सो आई हैव बेसिकली इसमें कोई आपको कोई इंटरनल चॉइस नहीं दी हुई इसके अंदर, ठीक है। जो पहले वाला पार्ट है 23 मार्क्स का, वो तो एमसीक्यू है, यू हैव टू जस्ट अटेम्प्ट एबीसीडी ऑप्शन में से जो आपको सही ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। 2 मार्क्स के अंदर भी फाइल अपलोड करनी है, अपने सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो और ऊपर अपना कम से कम अपना रोल नंबर मेंशन कर देना, ठीक है। ऐसे 3 मार्क्स के अंदर अपने कॉपी के ऊपर सॉल्व करो क्वेश्चन and then upload, and similarly for 5 marks also, ठीक है। कोई आपको किसी भी टॉपिक में और कोई क्वेश्चन है, सो डोंट हेजिटेट, यू कैन आस्क। ठीक है, क्वेश्चन आपको कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे, माय हम्बल रिक्वेस्ट इज प्लीज, ये इसलिए नहीं है ये पेपर की डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा तो आपने वो क्वेश्चन देखा नहीं है, दैट इज
जितना भी आप कर सकते हो ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। वो आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आएगी 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आपकी साइड से कोई गुरलीन कोई टॉपिक नहीं है क्लियर, बताओ। सर अभी तो सब कुछ ठीक ठाक है, तो अभी मैं एक बार अच्छे से पढ़ लूंगा, फिर सर आपसे हाँ, पूछ लूंगा। देखो अगर आपने जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, दैट इज द पीपीटी इज द रिसोर्स। थोड़ा डिटेल में पढ़ना है आप लोगों ने, सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि एग्जाम के टाइम पे तो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रेटजी, आई कांट गिव यू द स्ट्रेटजी, बट पढ़ने के लिए आप नॉर्मली पढ़ने के लिए गो फॉर द एनसीईआरटी बुक और सुमिता अरोड़ा। डोंट लुक फॉर दी ऑलवेज दी पीपीटी फाइनल टाइम में आप उसको रिवाइज कर सकते हो वहां से, बट दैट इज ए अनडाउटेबली दैट इज ए वेरी गुड रिसोर्स, ठीक है। इस एग्जाम के बाद हम थोड़े थोड़े से मैं आप लोगों को सैंपल पेपर भी दिया करूंगा, सो दैट वी आर बेसिकली जेल्ड विद दी बिट डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस आल्सो। अभी तक हमने सारे जो एग्जांपल्स ही हम करते हैं, सो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज सॉल्व करने की भी आदत डाल। पूछ लो कि आप लोगों की साइड से क्वेश्चन है। यस हर्षिता। हर्षिता के पास आवाज, इट्स टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू रीच ओवर देयर। यस तरुणजोत। बेटा कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन यू हैव? ठीक है, जस्ट ये हमारे पास डाटा हैंडलिंग 1 से शुरू करना है, ठीक है। डाटा हैंडलिंग 1 में जो आप लोगों के पास जो टॉपिक्स हैं, जैसे ये सीरीज है, तो सीरीज के अंदर जो जो भी चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर इन दी सीरीज मेथड, ठीक है। मोस्टली यूज हम 2 ही करते हैं, बट ऑल दी ऑप्शंस यू शुड बी अवेयर ऑफ, ठीक है। और व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग दी सीरीज? एरे से क्रिएट कर सकते हैं, डिक्शनरी से कर सकते हैं, स्केलर वैल्यू से कर सकते हैं। सो बाकी आपको क्रिएट करनी आती है, दैट इज दिस इज द ब्लैंक सीरीज, ठीक है। सो जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, दैट इज, कोई बता सकता है आप में से, अगर हमने सीरीज और लिस्ट को डिफरेंशिएट करना हो, तो हाउ विल यू बी एबल टू डिफरेंशिएट दी सीरीज एंड दी लिस्ट? कैसे डिफरेंशिएट करोगे इसको? बताओ कोई। हाँ जी गुरलीन। सर सिंपली हम डिफरेंशिएट तब कर सकते हैं, जैसे जो सीरीज और लिस्ट में सीरीज 1 डायमेंशनल होती है, और जो जो लिस्ट होती है वो 1 डायमेंशनल होती है, पर उसमें हम मल्टीपल क्या कहते हैं इसको, नेस्टेड लूप लगा के हम मल्टीपल डायमेंशन बना सकते हैं, और उसमें सिंगल डायमेंशन होती है, लिस्ट हो गया और सीरीज हो गया। उसके बाद सर सीरीज के अंदर एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग हम कर सकते हैं, पर जो लिस्ट है उसके अंदर हम नहीं कर सकते हैं, और हम जैसे मर्जी अपने इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, पर हम सर लिस्ट के अंदर नहीं, सीरीज के अंदर हम जैसे मर्जी अपनी इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं, पर लिस्ट के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद सर जो सीरीज के अंदर वैल्यूज होती हैं, उनका जो इंडेक्स होता है वो नंबर्स भी होता है, एज वेल एज हम उनको कोई भी लेबल भी दे सकते हैं, पर जो लिस्ट के अंदर है हम ऐसा नहीं कर सकते, सिंपल नंबर ही उनको इंडेक्स दे सकते हैं, और वो प्री डिफाइंड होते हैं 0 से लेकर इन्फिनिट, जहां तक आपकी लिस्ट बनी हुई है। ठीक है। So I got the idea from this question. That is the what should be the difference? There is a difference between the series and the list. Clear? थोड़ा applied question. Applied question में आता है basically कि how we apply the operations. जैसे ये लिस्ट है हमारे पास गिवन, ठीक है। तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई दी सीरीज बाय 4, तो कोई बता सकते हो क्या होगा? जैसे हमारे पास ये सीरीज गिवन है, ये हमारे पास सीरीज है गिवन, ठीक है। जैसे ये तो लेट्स मूव टू दी,
एक सीरीज ले लेते हैं। ठीक है, so these are the values. क्या आएगा इसका आंसर? हाँ जी बोलो गुरलीन। हाँ जी सर, 4 का मल्टीपल हो जाएगा 1, 4 1 जा 4, फिर 4 2 जा 8 आ जाएगा, फिर 4 3 जा 12 आएगा, 4 4 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का बाकी 50% मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दिया आप लोगों के लिए। बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन यू हैव टू डिफरेंशिएट द लिस्ट एंड द सीरीज। ठीक है जी, सो यू सी अगर हम सेम ऑपरेशन लिस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं हाउ वी गेट द रिजल्ट। सो लेट्स मूव टू दी, ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स आ गए ऑफ क्रिएटिंग द लिस्ट सीरीज, सॉरी दिस इज द सीरीज फ्रॉम द डिक्शनरी। ठीक है, सो ये है, दिस इज द सीरीज फ्रॉम ए स्केलर वैल्यू। ठीक है, स्केलर वैल्यू इज a single value that is repeated as many number of times as we have the index of the series. अगर इंडेक्स 4 बार आ रहा है तो ये 4 बार रिपीट हो रही है। फिर है हमारे पास डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वी हैव additions, we have multiplication on the series। ठीक है, फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट है हेड एंड टेल फंक्शन। हेड है, अगर हम बाय डिफॉल्ट जो हेड है इट गिव्स द टॉप 5 रोज एंड द टेल गिव्स द बॉटम 5 रोज। अगर हम इसके अंदर नंबर मेंशन कर दे तो अगर हम 3 मेंशन कर रहे हैं तो टॉप 3 वैल्यूज, और अगर हम टेल के अंदर जैसे सिमिलरली यू सी इन मे बी इन द नेक्स्ट स्लाइड, दिस टेल फंक्शन इज देयर, दिस इज फॉरवर्ड। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन। कई बार क्या होता है कि वहां पे वो हेड एंड टेल वर्ड का यूज नहीं करता, वो सीधा ही आपसे पूछेगा that I want to see the bottom 3 rows of the data frame and maybe the top 3 rows of the data frame या सीरीज के अंदर भी। ठीक है, तो आपने ये डिसाइड करना है कि हेड लगेगा या टेल लगेगा और कितनी वैल्यू है। अगर 3 पूछी है तो यू हैव टू स्पेसिफाई ये वैल्यू आल्सो। ठीक है, अगर वो 3 पूछ रहा है 2 पूछ रहा है तो आप लोगों को वो नंबर वहां पे हेड एंड टेल फंक्शन में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, so this is about the how to access the values in series। this is about the selection, how we go with the selection। ठीक है, similarly the next is, अब आप देखो कि सीरीज के अंदर हमारे पास 4 पैरामीटर थे। by default we have 4 parameters in series and if you look at the data frame 1 2 3 4 5, so 5 parameters are there in case of data frame। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे वहां पे। ठीक है, पैरामीटर्स के बेस्ड। ठीक है, ऑपरेशन नेक्स्ट हमारे पास मेथड यही है, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग द डाटा फ्रेम। लिस्ट से क्रिएट कर सकते हैं, डिक्शनरी से, सीरीज से, numpy से, फ्रॉम एरेज बेसिकली एंड फ्रॉम ए अनदर डाटा फ्रेम। सो these are just the simple methods only। ठीक है, लेट्स मूव टू दी अदर पार्ट दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हमारे पास फंक्शंस काफी हैं। दैट इज वी हैव पांडास, डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। तो इसके अंदर है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैट। डिस्क्रिप्टिव स्टैट का मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैट होता क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैट का मीनिंग होता है कि जो भी हमें गिवन डाटा है वो किस तरह का डाटा है, उसको एनालाइज करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं दे आर द पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव स्टैट। जैसे हमारे पास है मीन, मीडियन, मोड,
स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। तो इन सारे मेथड से हम डाटा को एनालाइज करते हैं। जैसे हमारे पास मैक्सिमम फंक्शन था, दैट इज टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट यूज है, दैट इज अगर हम एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं तो इट रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू फॉर एवरी कॉलम, और अगर हमें रो वाइज चाहिए तो इसके लिए हमारे पास हम वैल्यू पास ऑन करनी पड़ेगी एक्स इज इक्वल टू 1। ऐसे मिनिमम के लिए भी है, जैसे ये हमने इसमें से हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है। अगर हमें कॉलम वाइज चाहिए, जैसे टीसीएस है, विप्रो, इसमें से चाहिए, तो हम इसके अंदर यूज करेंगे एक्स इज इक्वल टू दिस, एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर कॉलम, एंड एक्स इज इक्वल टू 1 अगर हमें रो वाइज चाहिए। रो वाइज कौन सा है? रो वाइज के लिए ये क्वार्टर है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर। सो जस्ट गो थ्रू दी these functions, descriptive stat, minimum, maximum, then you have count, ठीक है। count basically just counts the number of values, ठीक है। एक sum आ जाएगा हमारे पास। next mean आ गया हमारे पास, that is to find the mean value. Similarly it works on the row wise also and column wise also, ठीक है। x is equal to 0 is for each column and x is equal to 1 for each row. तो ये सिंपल ये सारे मेथड। मीन हो गया हमारे पास, सम टू सम अप दी ऑल दी वैल्यूज। मीडियन था हमारे पास, एक हमने परसेंटाइल का डिस्कस किया था, और ये हमारे पास लास्ट आ गया क्वार्टाइल था। ये क्वार्टाइल को हमने मैन्युअली भी कैलकुलेट करके देखा था, हाउ वी गो विद द क्वार्टाइल, ठीक है। कहीं पे क्वार्टाइल वर्ड यूज होता है, कहीं पे ये क्वांटाइल वर्ड यूज होता है। सो बोथ रेफर टू द सेम थिंग। आप क्वार्टाइल वर्ड यूज कर लो, चाहे आप क्वांटाइल वर्ड यूज कर लो, ठीक है जी। सारा मैकेनिज्म इसमें दिया हुआ है, हाउ वी एनालाइज दिस। वेरिएंस आ गया हमारे पास एक, ठीक है। हमने तो सिर्फ मेथड को यूज करना है, वेरिएंस को। वी डोंट गो इनटू द टू मच डिटेल्स ऑफ वेरिएंस, ठीक है। कैसे कैलकुलेट हो रहा है, सो हमें उसका फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। एक स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारे पास। फिर एक थी हमारे पास ग्रुप बाय क्लास। तो ये ग्रुप बाय क्लास कैसे यूज होती है डाटा फ्रेम के ऊपर? फंक्शंस इन ऑल द फॉलोइंग ऑपरेशंस। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो गिवन डाटा है दैट इज स्प्लिटेड। ये स्प्लिट क्यों होता है? क्योंकि ग्रुप बनेगा किसी कॉमन चीज के ऊपर, ठीक है। जैसे यहाँ पे की जो है, की के ऊपर ग्रुप बनेगा, तो की कौन सी है? ये ए और ए। तो ग्रुप हमारे पास सिमिलर चीजों का ग्रुप बनता है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले क्या ये स्प्लिट ऑपरेशन होता है कि डाटा में से ए, जहां जहां ए है उसको हम अलग कर देंगे, फिर जहां जहां बी है उसको अलग कर देंगे, जहां जहां सी है उसको अलग कर देंगे। फिर जब हम ग्रुप करेंगे तो ये सम होके क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू 5 बन जाएगी, बी की ये सम होके 7 बन जाएगी, और सिमिलरली सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, दोनों का सम होके ये ऐसे बन जाएगा। तो इस तरह से ये ग्रुप बाय क्लास जो है वो काम करती है। एंड यू कैन सी द एग्जांपल आल्सो। ये कीज गिवन है, फिर आगे हमें डाटा गिवन है, एंड बेस्ड ऑन दैट ग्रुप बाय में हमने की को पास ऑन करना है, फिर हमने सम मेथड को यूज करके इसका हम we can apply the sum of all the keys which are mentioned in this. तो ग्रुप बाय क्लास थोड़ी सी डिफरेंट है इसमें, हाउ इट वर्क्स, और अल्टीमेटली इसका काम वही है जो ग्रुप बाय क्लास माई एसक्यूएल में काम करती है। सिमिलर वर्क टास्क इज डन बाय ग्रुप बाय क्लास हियर आल्सो। एक नेक्स्ट सॉर्टिंग आएगा। सॉर्टिंग यू आर फेमिलियर हाउ टू सॉर्ट दी वैल्यूज, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप रखना चाहते हो तो यू मेक इट ट्रू, अगर आप इसको डिसेंडिंग में रखना चाहते हो तो मेक असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। नेक्स्ट इसमें जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आफ्टर दी
सॉर्टिंग के बाद वो थोड़ा आप लोगों को डिफिकल्ट लगेगा। रीनेमिंग इंडेक्स, सो जिसमें सिर्फ आपको ये मेथड याद कर लेना, ये रीनेम कैसे करते हैं हम। डिलीटिंग द इंडेक्स, ये दिस topic is very very important and you may be less familiar with this topic also, pivoting and aggregation। तो pivoting के अंदर हमारे पास दो मेथड है, वन इज द pivot मेथड एंड सेकंड इज द pivot हाइफन टेबल मेथड। दो मेथड है। सबसे पहले pivoting का हम यूज क्यों करते हैं, कोई बता सकता है आप में से? pivoting का काम क्या होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ pivoting? इसके ऊपर डेफिनेटली यू विल फाइंड द क्वेश्चन इन आइदर इन थ्योरी, और थ्योरी में ही आएगा, आ जाएगा ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल में अभी। यस मुस्कान। So pivoting is used to summarize the huge amount of data. Yes, definitely, very good. Basically, when we have huge amount of data and we want to basically prepare the reports, ठीक है, हमें क्या पर्पस होता है, जैसे हम रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, यू लुक एट दी कंपनीज डाटा, जो क्वार्टरली रिपोर्ट आती है, एनुअल रिपोर्ट आती है। सो दे उसमें प्रॉफिट लॉस जो आता है, एक फिगर ही आएगी प्रॉफिट की, एक फिगर होगी लॉस की, एक होगी कि वट एवर दी अदर पैरामीटर्स आर देयर, प्रॉफिट लॉस, एंड मे बी कॉमर्स स्टूडेंट्स मोर फेमिलियर विद दैट। तो वो जो हमारे पास रिपोर्ट आती है, दैट इज हाउ दैट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, दैट यू कैन से दैट इज मे बी दी one of the example of pivoting process. So it is one of the important aspect of data analyst. It is used to summarize large amount. So this is the key thing that is already mentioned by Muskan, to summarize large amount of data. तो जब भी हमारे पास वाइवा में क्वेश्चन है तो पाइवोट का क्या काम क्या है, टू बेसिकली समराइज द डाटा एंड परमिट अस टू एक्सेस इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स फ्रॉम लार्ज डाटा सेट। तो हम तो हमेशा छोटी छोटी एग्जांपल लेके चल पड़ते हैं। सो इट्स मेन एप्लीकेशन इज for this one, for large amount. So first we have a pivot method. This allows to transform or reshape the data frame based on the column values according to the perspective. Our perspective, जिस तरह का हमें perspective चाहिए उसमें convert करने के लिए we make use of the pivot method. It has three arguments. One is index, second is columns, and third is values. So let's look at the example. ये है हमारे, तो इस एग्जाम्पल में क्या है, यू सी हियर कि ये तो समझाने के लिए, एक स्लाइड में शो करने के लिए ऐसा डाटा हमें गिवन, ठीक है। तो आप इसमें से एनालाइज कर सकते हो कि ये जो लेफ्ट साइड में डाटा है दैट इज मोर वेग, और जो राइट साइड में डाटा है वो ज्यादा बेसिकली समराइज्ड है। देखो इसमें ईयर 2018 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, इसमें सिर्फ एक ही बार आ रहा है। इसमें 2019 एक बार, 2 बार, 3 बार आ रहा है, इसमें सिर्फ एक ही बार, और कोई भी टीम रिपीटेड नहीं है यहाँ पे। मुंबई इंडियंस एक बार आ रही है, आरसीबी एक बार आ रही है, और सीएसके एक बार आ रही है। अब मेरे को करना क्या है, डाटा फ्रेम मैं इसमें पास करूंगा जिसको मैंने कन्वर्ट करना है। इंडेक्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जो मेरी ईयर वैल्यू है, ये ईयर वैल्यू जो है शुड वर्क एज ए इंडेक्स। कॉलम्स कौन कौन से हैं मेरे, आई हैव मेंशन्ड हियर कॉलम्स एज टीम्स। कॉलम्स में मेरे पास क्या आ जाए, टीम आ जाए, और वैल्यूज में मेरे पास क्या आ जाए, रन्स आ जाए, ठीक है जी। तो ये तीन ही हमारे पास आर्गुमेंट है। डीएफ रिप्रेजेंट जो हमारे पास मेन डाटा है, दिस इज द डाटा एज ए डाटा फ्रेम। इंडेक्स में आ गया मेरे पास ये ईयर वैल्यू, कॉलम्स में आ गई मेरे पास ये टीम्स, और वैल्यूज में आ गई मेरे पास रन्स। मैंने जस्ट ये मेथड रन करना है, दैट्स ऑल। पाइवोटिंग इज डन फ्रॉम माय साइड, और हमने कुछ भी इसके अंदर, हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा। ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये मैंने मेथड अप्लाई किया इसके अंदर, और ये मेरे पास से रिजल्ट आ जाएगा। ये मेरे पास जो पहले डाटा फ्रेम है, और ये मेरे पास आउटपुट है, ठीक है। तो इसमें जो याद रखने वाली बात है, जब आप प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये तीन पैरामीटर को आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इंडेक्स, कॉलम्स एंड वैल्यूज। और मेथड है हमारे पास पाइवोट। पहला पैरामीटर जो है, पहला पैरामीटर हमारे जो ओरिजिनल डाटा फ्रेम है उसको रिप्रेजेंट करता है, और डाटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हमने क्या यूज किया, डिक्शनरी का यूज किया, ठीक है। पाइवोट मेथड क्लियर है सभी को? यस हर्षिता।
क्लियर है? यस, सो गुड। अब हम देख लेते हैं जो हमारे पास दूसरा मेथड है, पाइवोट टेबल। दिस इज द पाइवोट टेबल। So we know that pivot method takes at least 2 columns, means as parameters, 2 columns, at least 2 columns names as parameters, the index and columns. What will happen if we have multiple rows with the same values for these columns? So what is the scenario when we have repeated values? Clear? इसको फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। We know that the pivot method takes at least 2 columns as parameters. एक इंडेक्स चाहिए, एक कॉलम चाहिए इसमें, ठीक है। What will happen if we have multiple rows with the same values for these columns? अगर हमारे पास मल्टीपल रोज के अंदर रिपीटेड वैल्यू होंगी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? So you see here, the pivot table method comes to solve this problem. अगर मेरे को सिंपल सी बात हो गई, पहले क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ 3 पैरामीटर के ऊपर फोकस किया, अब हमने उसके अंदर एक क्लॉज ऐड कर दी। जो पहला मेथड है कि अगर हमारे पास रिपीटेड वैल्यू है, एंड आई डोंट वांट द रिपीटेड वैल्यूज, आई वांट ओनली द यूनिक वैल्यूज टू बी रिप्रेजेंटेड इन माय आंसर, तो उसके लिए मैं दूसरा मेथड यूज करूंगा, दैट इज द पाइवोट टेबल मेथड इज देयर। So you can see here what is the pivot table is there. This method comes to solve this problem. It works like the pivot, उसी की तरह काम करता है, but it aggregates the values from rows with duplicate entries from the specified columns. Clear? तो ये क्या करेगा? But it aggregates, उसको क्या कर देगा? Aggregation कर देगा। जहां जहां पे duplicate value आएगी उसकी ये aggregation कर देगा। यहाँ पे duplicate value का meaning जो है वो डाटाबेस वाली डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो एग्रीगेट वैल्यूज को कैसे करेगा? जैसे मेरे पास 10 वैल्यूज आ गई, मेरे पास 10 स्टूडेंट का वेट आ गया, तो वो उसका एवरेज वेट कैलकुलेट करके देगा। ये आ गया आपके पास एक वन फिगर। मेरे पास 50 स्टूडेंट्स का डाटा है, तो 50 स्टूडेंट्स के अंदर मेरे पास 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, लेट्स से इन आईपी सब्जेक्ट, तो वो क्या कर देगा? सारे के सारे 50 मार्क्स की एवरेज कैलकुलेट करके एक फिगर जनरेट कर देगा। डुप्लीकेट वैल्यूज डजंट मीन कि 10 एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, वो डाटाबेस वाली रेपिटेशन नहीं है। हियर द रिपीटेड वैल्यू इज दैट व्हेन वी हैव मल्टीपल वैल्यूज, तो उसको वो एग्रीगेट करके एक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर देगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, जैसे ये देखो मेरे पास क्या है, जैसे मैं टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहा हूं, दिल्ली का टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहा हूं, तो एक डेट के अंदर मेरे पास 2 टेम्परेचर हैं, 28 भी है 30 भी है, तो मैं किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करूंगा वहां पे? ठीक है, तो जब हम ये पाइवोट टेबल मेथड अप्लाई करेंगे तो 28 और 30 में से कौन सी वैल्यू सिलेक्ट होगी, ये दोनों का क्या कर देगा? एग्रीगेशन ऑपरेशन कर देगा, इसका मीन कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 28 और 30 वैल्यू को वो डुप्लीकेट वैल्यू ट्रीट कर रहा है। डुप्लीकेट डजंट मीन कि यहाँ पे 28 है और यहाँ पे भी 28 होगा। सो दिस इज द ओनली पॉइंट टू बी कंसिडर्ड। 28 और 30 को वो डुप्लीकेट वैल्यू ले रहा है, तो उसको क्या कर रहा है? वो उसकी एवरेज कैलकुलेट करके दे रहा है। ठीक है, तो पाइवोट टेबल मेथड क्या करता है? वी हैव टू समराइज कि जहां पे वो मल्टीपल वैल्यूज को पिक करता है, एंड अगर वो मल्टीपल वैल्यूज जो हैं नो, उसको वो एग्रीगेशन ऑपरेशन से एक वैल्यू में वो कन्वर्ट कर देता है। सो वेरी गुड एग्जांपल इज गिवन हियर, सो यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वन। जैसे ये टेम्परेचर है, तो अगर मेरे को मुंबई का टेम्परेचर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? एक ही डेट पे 2 टेम्परेचर है, 12 और 2019 पे 2 टेम्परेचर है, तो उसकी वो क्या कर देगा? उसका एग्रीगेट कैलकुलेट। सो दिस इज द प्रोग्राम is given with you, you can try it out this program also। ठीक है, यूज ऐसे ही करना है हमने। इंडेक्स में जैसे ये सिटी रख लिया और वैल्यूज में हमने टेम्परेचर रख लिया, तो ये टेम्परेचर को अब रिप्रेजेंट कर देगा। ये देखो टेम्परेचर को, और टेम्परेचर की मल्टीपल वैल्यू नहीं आ रही, सिंगल वैल्यू आ रही है, तो ये सिंगल वैल्यू एवरेज को रिप्रेजेंट कर। ठीक है, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन हो, सर यहाँ पे टेम्परेचर की तो 2 वैल्यू है, दिल्ली के अगेंस्ट 2 वैल्यूज है, मुंबई के अगेंस्ट 2 वैल्यूज है, और यहाँ पे एक वैल्यू इसलिए आ रही है कि वो उसका क्या कर रहा है? एग्रीगेट फाइंड आउट कर।
एग्रीगेट में ये देखो, एग्रीगेट में आप एग्रीगेट पैरामीटर को ऐड करके, अगर मेरे को आपको एवरेज नहीं चाहिए, आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो आप मैक्सिमम फंक्शन का यूज कर सकते हो। आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे ये इस पैरामीटर का यूज करके AGG फंक्शन यूज करके यहाँ पे आप मिनिमम कर दो तो वो मिनिमम वैल्यू को दे दे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विद रिगार्ड टू दी पाइवोट। ठीक है, पाइवोट मेथड वो है, पाइवोट के अंदर दो मेथड है हमारे पास, एंड वन इज पाइवोट एंड पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल वहां पे यूज करते हैं जहां पे वी डोंट वांट टू रिप्रेजेंट द डुप्लीकेट वैल्यू, वी वांट टू रिप्रेजेंट ए सिंगल वैल्यू। यस, आप लोगों की साइड से कोई और क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। और अब लास्ट टॉपिक हमारे पास रह गया डाटा विजुअलाइजेशन। सो यू हैव ऑलरेडी, हम उसको लास्ट पे खत्म किया है। 5-6 मेथड है उसके अंदर। ठीक है, एक हमारे पास लाइन के लिए हो गया प्लॉट मेथड, बार हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, फिर हमारे पास पाई चार्ट के लिए था, और स्कैटर प्लॉट था, और एक बॉक्स प्लॉट था, और कौन सी पॉलीगन थी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, आई थिंक सो। वो जो दैट वाज सिमिलर टू दी हिस्टोग्राम, उसमें एक पैरामीटर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं टू दी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, स्टिल इफ यू फाइंड एनी डाउट, ठीक है, शाम तक आपको कोई डाउट है, यू कैन सेंड मी दी व्हाट्सएप। ठीक है, बिकॉज आई एम फाइंडिंग आउट दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन आस्किंग क्वेश्चन, सो आई थिंक एवरीवन इज। हाँ पूछो बेटा। सर मल्टीपल बार ग्राफ समझा दो एक बार। मल्टीपल बार ग्राफ, उसका एक प्रोग्राम बनाकर दिखा दो। कौन सा? सर एक था जो हमारे PDF में था, उसका एक हाँ। प्रोग्राम था, तो वो इतना अच्छा मुझे समझ में नहीं आया। कौन सा प्रोग्राम था पहले? मल्टीपल कौन सा? मल्टीपल आपने क्या पूछा? मल्टीपल बार ग्राफ का। अच्छा, ठीक है। मल्टीपल बार ग्राफ मीन्स we want to go with multiple bar graph in a single graph. Yes sir. ऐसा कोई था क्वेश्चन? सर आप ओपन करो, मैं आपको दिखाती हूँ। क्या ओपन करूँ? ये डाटा विजुअलाइजेशन की PDF। वेरी गुड। सो नाउ यू सी द डाटा विजुअलाइजेशन, दिस इज द PDF। इसमें ये मेथड है हमारे पास, दीज आर दी मेथड्स। नहीं, ये तो उसके एडवांटेजेस हो गए। हाँ जी, ये बार ग्राफ में जाना है हमने। यस सर। लाइन प्लॉट, मल्टीपल लाइंस का तो हमने किया था, मल्टीपल बार ग्राफ कैसे आएंगे एक के ऊपर? वो तो ओवरराइड से नहीं हो जाएंगे सर था ऐसा क्वेश्चन। नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो आप, सिंपल सी बात है, ये मल्टीपल लाइंस तो आप विजुअलाइज कर सकते हो। ये देखो, पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन में जाओ। देखो इसमें आपने एक लाइन ड्रा करनी है, एक कर लो, दो करनी है, दो कर लो, 4 5, हमने तीन लाइंस का हमने प्रोग्राम किया था क्लास के अंदर, जिसमें हमने GNV का डाटा लिया था, KV स्कूल का डाटा लिया था, और एक अपने स्कूल का डाटा लिया था। ठीक है, तीनों की हमने लाइन ड्रा की थी। आप 4 लाइन ड्रा कर लो, 5 लाइन ड्रा कर लो, लेकिन आप देखो नेक्स्ट गो टू दी बार ग्राफ। बार ग्राफ में अगर आप मल्टीपल डाटा को रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पे तो ऐसे ही बार्स बनेगी। ठीक है, सिंपल वाली। मल्टीपल कैसे बन जाएंगी इसमें? सर एक बार आप नीचे करना थोड़ा सा। ठीक, नीचे हिस्टोग्राम शुरू हो गई। सर आएगा। अच्छा, और नीचे जाऊं? यस। नहीं बेटा, ये तो हर एक मेथड का ना, अब हिस्टोग्राम शुरू होगी। देखो हिस्टोग्राम के बाद पाई चार्ट शुरू हो गया। ठीक है, आपको क्वेश्चन मिलता है ना, यू नीड नॉट टू वरी। ठीक है, आप मेरे को सेंड कर दो, आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन, वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, डोंट वरी अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा क्वेश्चन, नॉट इशू। ये बॉक्स प्लॉट आ गया हमारे पास। ठीक है, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स
अगर आपको किसी भी टॉपिक में हेजिटेशन है, सो यू कैन ब्रिंग इट आउट टू द नोटिस एंड विल ट्राई टू डेफिनेटली सॉल्व. यस, एनी अदर क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन? ठीक है, सो ट्राई टू गो आउट विद द क्वेश्चंस. ठीक है, और पढ़ने के लिए आपके पास रिसोर्स है, सभी के पास अवेलेबल. एनी स्टूडेंट जिसके पास कम से कम एनसीईआरटी वाली बुक तो अवेलेबल ही है सभी के पास. बाकी जिसने बाई की होगी सुमिता अरोड़ा, आई थिंक दैट्स फाइन. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड. क्लियर? एंड इफ यू फील एनी डाउट यू कैन कम आउट. यस गुरलीन. सर मैंने ना पीडीएफ में से कॉपी किया पाइवट वाला मेथड, तो पूरा प्रोग्राम, तो उसके आखिरी में ये एरर दिखा रहा है कि पाइवट सिंपल फिर पैरेंथेसिस गॉट मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्गुमेंट इंडेक्स. कोई नहीं, सर भेजो आप अब मेरे को भेज दो आप स्नैपशॉट हाँ जी इसकी. सर, देख लेता हूँ मैं भी इधर करता हूँ. ठीक है ठीक है, सर. ठीक है, ओके बेटा. हाँ जी थैंक सर. यू अदर्स फॉर जॉइनिंग द क्लास. थैंक्स बेटा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. थैंक Thank यू you, sir. सर.